So we had started with the topic of depreciation. I explained you what is depreciation. I also talked about the factors affecting depreciation. There are four factors affecting depreciation like cost of the asset, estimated useful life, estimated realizable value, and method of the depreciation. If there is change in any of these any of these four, obviously it is going to have effect on depreciation also, because these are the factors which decide the depreciation. And we also discussed yesterday that if there is change in any of these, it will be recorded, it will be given effect prospectively. Prospectively means now onwards, hereafter, prospective effect. कल हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स भी देखे डेप्रिसिएशन के. 6 methods we talked about, and under all those 6 methods how depreciation is calculated we understood. Straight line method, WDV method, depletion method, machine hour rate method, sum of the digits, एंड रिवैल्यूएशन मेथड. तो ऐसे ये सारे मेथड्स हमने कल डिस्कस किए, अपना कंप्लीट भी हो गया वो पार्ट. और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. आई थिंक कल 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए क्या हम लोगों ने, फर्स्ट एंड फोर्थ. लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स क्विकली. प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 14. गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा. आज इसके पहले का लेक्चर थोड़ा सा लेट छूटा, इसलिए मैं जानबूझ के 10 मिनट लेट स्टार्ट किया हूँ ये लेक्चर. कोई बात नहीं, वी विल कंप्लीट आवर 2 hours लेक्चर. क्या क्या 5 बजे तक? मैं 2 घंटे ही लूंगा. मैं मेरा ही टाइमिंग लूंगा, 2 hours, नॉट मोर देन दैट. टुमारो बीइंग संडे, नो लेक्चर. Monday, Tuesday is Dashera, and on the occasion of Dashera we have holiday again, and therefore Monday itself we are celebrating traditional day. So Monday traditional day है, तो आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए. हो सके तो आप साड़ी पहन सकते हो. आप लोग ट्राई मत करना. बॉयज डोंट ट्राई साड़ी. ट्रेडिशनल हाँ किया चलेगा ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. केले के पत्ते लगा के आ जाओ. अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से आप आ सकते हो. आपको झिंगा लाला बन के आना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो बीइंग नवरात्रि इज लास्ट डे, एंड दशहरे का एक दिन पहले, दशहरे के दिन तो छुट्टी है, उस वजह से वी विल बी सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल डे. तो परसों आप ट्रेडिशनल ड्रेस में आ सकते हो. अब ट्रेडिशनल ड्रेस क्या पहनना है ये चॉइस अपना अपना है. कौन सा ट्रेडिशन सेलिब्रेट करना चाहते हो दैट इज अप टू यू. यस. प्रॉब्लम नंबर 2. श्रेया, यस बेटा. यहाँ पे क्वेश्चन आया है और मेरे को यूट्यूब पे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था, सर क्वेश्चन भी दिखाओ स्क्रीन पे. क्या है उसके लिए मेरा आईपैड कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, और मैंने कैरी नहीं किया है साथ में. वैकॉम में वो स्क्रीन पे दिखाना नहीं होता पॉसिबल. मैं आईपैड कब से लेके आता हूँ, कल से, तो फिर मैं वो कनेक्ट कर पाऊंगा और तुमको क्वेश्चन भी दिखाने आएगा मेरे को. आज के दिन थोड़ा मैनेज कर लो बेटा. और पीडीएफ शेयर किया हुआ है ना मैंने वैसे भी. सेकेंड सम, कोई बात नहीं, ओके. Messrs. Roxy purchased a brand new machinery on 1st January 2022 for 3,20,000 and also incurred rupees 80,000 on its installation. Another machinery was purchased on 1st July 2022 for rupees 1,60,000. On 1st July 2024, machinery purchased on 1st Jan 2022 was sold for 2,50,000. Another machinery was purchased and installed on 30th September 2024 for 60,000. Under existing practice, the company provides for depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. However, from 2025, it decided to adopt WDV method and charge the depreciation at the rate of 15% per annum.
You're required to show the machinery account for the year 2024 and 2025, considering the books of accounts are closed on 31st December each year. लिखो guys. Problem number 2, page number 14. In the books of Messrs. Roxy, in the books of Messrs. Roxy, machinery account. दो साल के लिए बनाने के लिए बोला है 24-25. Half page, draw the format. 'Date, particulars, rupees, date, particulars, rupees. Dates are very important in life. अपने को बेटा 2024 और 2025 ये 2 ही साल के मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला हुआ है. तो 2024 का मेरे को ओपनिंग का बैलेंस लगेगा, जबकि मशीनरी परचेस हुई है 2022 में. तो आई नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2024. तो 1 जनवरी 2024 का ओपनिंग बैलेंस मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा ना. मशीनरी 2022 में खरीदे हुए दो मशीनरी खरीदे हैं. एक 1 जनवरी 2022 को खरीदी है और एक 1 जुलाई 2022 को खरीदी है. तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन जाते जाके 2022 और 23 का, फिर 2024 का ओपनिंग का बैलेंस आएगा ना. यही अगर अकाउंट यही अकाउंट अगर मुझे 2022 से बनाने को बोलते मशीनरी अकाउंट, तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, मैं पूरा अकाउंट फॉर कर लेता. बट अपने को 2024 और 2025 2 ही साल का बनाने को बोला है, तो 2024 का बिगिनिंग का बैलेंस अपने को ढूंढना पड़ेगा. छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, स्मॉल वर्किंग नोट. Ascertainment of WDV as on
1st of Jan 2024. Right hand side corner, machine 1 rupees, machine 2 rupees. एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, डेट ऑफ परचेस 1st Jan 22 and 1st July 2022. Cost of machinery 4 lakhs एंड जो 1 जुलाई को खरीदी है उसका कॉस्ट 1,60,000 लेस depreciation at the rate of 10% on cost बुलाया, on cost for 2022. कॉस्ट बोला है, बोलते SLM है, और 2025 में मेथड बदली है, WDV किया है, बट वो 2025 में है, तो इट विल बी गिवन इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली 2025 के आगे। अभी तो अपने को ओरिजिनल जो मेथड था SLM उसी से लेना है। तो 4 लाख पे तो बेटा पूरा 40,000 आएगा, और जो 1,60,000 का मशीन है उसके ऊपर 6 महीने का ही आएगा ना। तो परचेस 1 जुलाई को हुआ है, तो 10% वैसे 16,000 होता है, बट फॉर 6 months इट विल बी 8,000, बरोबर। Therefore, WDV as on 1/1/2023, I'll tell you without calci, it is 3,60,000. Good in mathematics, right? 1,52,000. बराबर। क्या क्या मैथ सिखाऊं? नहीं, सिंपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता मैं। लेस depreciation at the rate of 10% on cost। क्या तो रहता रहे उसमें वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, dy dx किया कि डेरिवेटिव ना, उल्टा ऐसा है, ये s निकाला कि इंटीग्रेशन हो जाता है, वो क्या रहता है उसमें। फिर भी अच्छा है वो टॉपिक नहीं रहा जो हमको था, ट्रिग्नोमेट्री, वो हमारे सिलेबस में था, फाउंडेशन में कुछ भी था वो तार पे, लाइट के तार पे पंछी बैठा है, फिर पत्थर मारा तो कौन से डिग्री में क्या उड़ गया, किधर क्या, बाप रे कुछ भी क्वेश्चन थे वो। मेरे को उसमें इतना समझा था, sin² + cos² इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बस इतना झेपता अपने को। 1/sin इज इक्वल टू कॉस, कोसेक कोसेक कोसेक, हाँ। बताओ बच्चों। 320 and 136 करेक्ट है। आ जाओ मशीन अकाउंट में, आ गए सब लोग, आ गए। 1/1/2024 टू बैलेंस brought down
जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ₹320 प्लस 136 ना, दोनों मशीन का मिला के WDV बताओ। 4,56,000। On 1st July 2024, the machine purchased on 1st Jan 2022 was sold for 2,50,000। 1 जनवरी 2022 को खरीदी हुई मशीन बेच दी 2.5 लाख रुपए में। कब? 1 जुलाई को। तो बेटा फिर 1 जुलाई को हमको बेचना है मशीन को, तो 1 जुलाई तक का डिप्रिसिएशन उस पर लेना पड़ेगा ना। तो क्रेडिट साइड 1st ऑफ जुलाई बाय डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितना था वो मशीन का जो बेची है? 4 लाख था। 10% 6 महीने के लिए, 1 जुलाई तक बोला तो अप टू द डेट ऑफ सेल। 2024 में भी SLM ही है, 2025 में मेथड बदला है। तो कितना आएगा ये? 20,000 आएगा। बेचा कितने में? 2,50,000। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कितने में बेचे बोले आप? 2,50,000। गाइज जो मशीन बेची उसका ओपनिंग WDV कितना था? ओपनिंग 3,20,000। इस साल का अप टू द डेट ऑफ सेल डिप्रिसिएशन 20,000। बोल तो उसका WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल कितना हो गया? 3 लाख। और बेचा कितने में? 2,50,000। सो देयर इज लॉस ऑफ 50,000। सो क्रेडिट साइड by loss on sale, yeah, you can write directly by P&L account. वर्किंग नोट करना है या यहीं पे कैलकुलेशन दिखा दूं? ये देखो मैं दिखा देता हूँ, नीचे किया है ना वर्किंग, वैसे भी हमने 3,20,000 तो ढूंढा ही था। फिर इस साल का डिप्रिसिएशन 20,000 माइनस बेचा कितने में? 2,50,000। 3,20,000 माइनस 20,000 माइनस 2,50,000 बरोबर। बोलो 50,000 आला। अब 2024 में और क्या ट्रांजैक्शन है? और एक परचेस है, कब है? 30 सितंबर है। 1 सितंबर कहाँ है? गुड मॉर्निंग। 30 सितंबर है। 30 सितंबर को परचेस रिकॉर्ड करो। टू कैश और बैंक कितना? 60,000 आया। अब 2024 में और कुछ नहीं है, डिप्रिसिएशन आएगा सिर्फ ईयर एंडिंग डेट को 31 दिसंबर 2024 बाय डिप्रिसिएशन। कौन से मशीन पे डिप्रिसिएशन आएगा? जो सेकंड मशीन थी उस पे, और जो अभी जो न्यू परचेस हुआ वो। जो सेकंड मशीन थी उस पे तो पूरे साल का आने वाला है। उसका कॉस्ट कितना था? 1,60,000 इंटू 10%। चाहिए तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 भी लिख सकते तुम, पूरे 12 महीने का। प्लस अभी जो परचेस किया 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12। बोलो 17,500 आ रहा है क्या सबका? 17,500। 2024 कंप्लीट हो गया, अकाउंट क्लोज करो, अगले साल रीओपन करेंगे।
by balance carried down 31st December 24। टोटल 5,16,000। What will be the balancing figure? 1,78,000 पक्का। 1,125। वन सेवेंटी एट 500। आया। नाउ सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसके बाद 2025 में ना ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, लेकिन मेथड हैज बीन चेंज्ड। द मेथड इज चेंज्ड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीबी एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कुछ भी नहीं बेटा, लास्ट डेट पे 31st December 25 बाय डेप्रिसिएशन। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी तो है ही तुम्हारे पास अकाउंट का बैलेंस, सीधा सीधा 15% ले लो। 15% ऑन 178,500। करो कैलकुलेट। 26,775 आया क्या? 26,775। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 151 7 151 725। हो गया। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, एग्जाम प्रॉब्लम है, 10 मार्क के लिए आया हुआ। Messrs. Dayal Transport Company purchased 10 trucks at the rate of rupees 50 lakhs each on 1st July 2017. On 1st October 2019, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed, and rupees 35 lakhs is received from insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 60 lakhs. Company writes off 20% of the original cost per annum. Company observes the calendar year as its financial year. Give the motor truck account for 2 years ending on 31st December 2020। 2 साल का ही अकाउंट बनाने को बोला यहाँ पे भी, ट्रक अकाउंट 2019 और 2020 का। चलो प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 14। In the books of Messrs. Dayal Transport Company,
मोटर ट्रक अकाउंट। बाळांनो, ड्रॉ द फॉर्मॅट। एकदम अच्छे से लाइन मारो, हाँ? क्या बोल रहे? आपसे मैं सिखाऊं? अरे, आप गुरु है मेरे लाइन मारने में, आपकी कहाँ बराबरी कर पाऊंगा मैं? क्या बोल रहा है? हाँ, अक्ष बहुत बोलने लग गया आजकल, हाँ? बोलता है और फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं। बहुत बदमाश हो गया अक्ष। शुभम कल कहाँ था? हम्म? किसके कॉलेज गया था? तेरा कॉलेज यहाँ थोड़ी है। रेडी? ए, के टू बी लिख। थोड़ा टाइम पास कम किया कर। कंटिन्यूस बड़ 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 करती, मुंह नहीं दिखता क्या रे बोल बोल के? मेरे को तो बोलने के पैसे मिलते इसलिए मैं बोलता हूँ। उसमें भी मैं परेशान हूँ बोल बोल के। अपन देखते एक दिन ट्राई करेंगे, 2 घंटे मौन व्रत ले सकते क्या श्रेया? लेट्स ट्राई। तुम लोगों को विपश्यना को भेजा तो क्या होगा भगवान जाने। विपश्यना वाले पागल हो जाएंगे। अपने को 2019 और 2020 ये 2 साल के अकाउंट बनाने हैं, तो फिर से 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग बैलेंस लगेगा, वो अपने को ढूंढना पड़ेगा। वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ WDV पर ट्रक as on 1/1/2019। सर K2B का मतलब क्या है? एक बार आप बोलते, ऑनलाइन वालों को समझ नहीं रहा है K2B क्या है। कैमरा घुमा के बताओ क्या K2B कौन है? खड़ूस खतरूस भाकरवड़ी। खड़ूस खतरूस K2 भाकरवड़ी का भी। अब ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ ये जानने के लिए। कॉस्ट पर ट्रक
कब खरीदे? कॉस्ट पर ट्रक एज ऑन 1 जुलाई 2017, 50 lakhs. लेस क्या रेट दिया डेप्रिसिएशन का? और कौन सा मेथड है? ऑन कॉस्ट फॉर 2017, 5 lakhs, बरोबर। 5 लाख कैसे आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कूद जाओ। छह महीने का ही आएगा। WDV as on 1/1/2018, 2018, again without Kelsey guys, it is 45 lakhs. बस ना, कितनी बार तारीफ करोगे? मैंने बोला ना, आई एम वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। बीकॉम में एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लेना पड़ता है। बीकॉम में मेरा स्पेशलाइजेशन मैथ्स था। हाँ। अच्छा, तुमको मालूम ही नहीं क्या? ये बीकॉम कर रहे हैं तुम लोग, तो एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का लेना पड़ता है ना। मेरा मैथमेटिक्स का स्पेशलाइजेशन डिग्री में लिख के भी आता है। जो डिग्री आती है ना ग्रेजुएशन की, उसमें लिख के आता है कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन किस में है। 2018 में 10 लाख रुपए कॉस्ट पे पूरे साल का। Therefore, WDV per truck as on 1/1/2019, 35 lakhs, 35 लाख। आया? आया? कितने ट्रक्स है अपने पास? 10। 1/1/19 to balance, brought down bracket 35 lakhs into 10 trucks, 3 करोड़ 50 लाख। इतने बड़े फिगर्स मुझे कंफ्यूज होते हैं, एक बार चेक करो, मैं बराबर लिख रहा हूँ ना। इतने जीरो झेपतेश नहीं अपने को। 3 करोड़ 50 बराबर लिखा है क्या? हाँ, 3 करोड़ 50 लाख। On 1st October 19, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed. एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया कब? 1 अक्टूबर को। तो फिर 1 अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन तो आने ही वाला है ना उस पे। 1 अक्टूबर 19, अक्टूबर बोल तो 10वां महीना है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ मंथ्स की काउंटिंग में होना नहीं चाहिए, बट होता है काउंटिंग में गड़बड़। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट SLM मेथड है। एक ही ट्रक का लॉस हुआ है, 50 लाख कॉस्ट था, इंटू 20% फॉर 10 मंथ्स। कैसे रे? 1 अक्टूबर बोलने के बाद 9 महीने होंगे ना। कौन बोला 10 मंथ्स? कोई तो बोला यहाँ पे। साक्षी बोली। अरे ढोकड़ू, तू तो साइंस है ना रे। साइंस के तो मैथ्स में डॉन रहते सब। अच्छा, ये मैथ्स थोड़ी है बोलना, ये तो कैलेंडर है। साइंस वाले कुछ भी सीखते। बोलो।
कितना आता है? हाँ, 7.5 लाख। मेरे को बताओ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एक ट्रक का कितना था? 35 लाख था। और डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट 7.5 लाख। बोल तो डब्ल्यूडीवी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट कितना हो गया? 27,50,000। इंश्योरेंस कंपनी ने दिए कितने? 35 लाख दिए। एक्चुअल में एग्जाम में आया बोल के मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसे गलत है ये। ऐसा कभी नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेस वैल्यू कभी पे नहीं करता, इंश्योरेंस से कम ही आता है पैसा कभी भी। उसमें कभी भी पूरा, एक तो पूरा क्लेम मिलता नहीं, पूरा क्लेम मिला भी तो एक्चुअल लॉस ही इतना है नहीं ना, एक्चुअल लॉस ही 27,50,000 है। तो इंश्योरेंस कंपनी 35 लाख कैसे देगा? ज्यादा से ज्यादा 27-50 देगा ना। ठीक है, इंश्योरेंस में डिप्रिसिएशन के रेट्स अलग कंसिडर हुए रहेंगे, ऐसे अज्यूम करके प्रॉब्लम में दिया है तो ठीक है, सॉल्व कर लेते। 1 अक्टूबर, बाय बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, 35 lakhs। अब इसमें तो प्रॉफिट हो गया है। डेबिट साइड 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लुक एट द स्क्रीन, कैसे प्रेजेंटेशन करना है स्क्रीन पे देखो, मैं बोलता हूँ। 35 लाख रुपए अपने को क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम, माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीबी उस साल की 35 लाख, और अप टू द डेट ऑफ एक्सीडेंट डिप्रिसिएशन 7.5 लाख। तो डब्ल्यूडीबी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट विल बी 27,50,000। और तुमने बेचा कितने में? इंश्योरेंस क्लेम कितना आया? 35 लाख। बोलो बच्चों। 7.5 लाख, 7.5 लाख। On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of 60 lakhs। 1 अक्टूबर को और एक ट्रक परचेज किया, 60 लाख। ईयर एंडिंग डेट को डिप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 19। कितने ट्रक्स पे डिप्रिसिएशन लेना है अपने को? पहले के 9 और अभी का एक 10। लुक एट द स्क्रीन, 50 lakhs इंटू 20% इंटू 9 ट्रक्स बराबर एसएलएम है ना। प्लस अभी जो ट्रक परचेस किया वो 60 लाख का है, 60 lakhs इंटू 20% इंटू 3/12, 3 महीने के लिए चाहेगा। 90 लाख ओरिजिनल 9 ट्रक पे का डिप्रिसिएशन, पर ट्रक 10 लाख रुपए। और ये जो 60 लाख वाला है 3 महीने का 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 93 lakhs। आया क्या रे? आया क्या रे? 50 lakhs is the cost per truck which were originally purchased. On that 20% बोल तो 10 lakhs, for 9 trucks it will be 9 lakhs। और जो एडिशनल ट्रक परचेस हुआ है 60 lakhs में, वो परचेस हुआ है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। 60 lakhs पे 20% works out to be 12 lakhs for 12 months, for 3 months it will be 3 lakhs। So total depreciation would be 93 lakhs। Close the account। Buy balance carried down, ₹4,17,50,000 का टोटल, बरोबर ना?
4,17,50,000। बड़े बड़े अमाउंट्स बोलने में भी कितना भारी लगता है, 4 करोड़। बोलो क्लोजिंग बैलेंस 2 crores 82 lakhs 50,000। 2 crores 82 lakhs। Alaka, copied everyone? Yes, sir. We are experts in copying. To balance brought down 2 करोड़ 82 लाख। 2020 में कोई ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन ले लो। पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 50 lakhs इंटू 20% इंटू 9 trucks प्लस 60 lakhs इंटू 20%। अभी पूरे 12 महीने का आएगा ना रे। ₹1,02,00,000। And then 31st December 20 buy balance carried down. ₹1,08,00,000। 1,80,00,000। फिर 8 कैसे बोले रे? ₹1,80,00,000 आया सबका? Last problem, fifth problem. On 1st January 2019, Kohinoor Transport Company purchased a bus for 8 lakhs. On 1st July 2020, this bus was damaged due to fire and was completely destroyed, and rupees 6 lakhs were issued by a check from insurance company in full settlement on 1st October 2020. On 1st July 2020, another bus was purchased by the company for 10 lakhs. Company charges depreciation at the rate of 20% per annum under WDV method. Calculate the amount of depreciation for the year ended 31st March 2021 and gain or loss on destroyed bus. Gain or loss on destroyed bus. चलो यहाँ पे अपने को कोई अकाउंट वकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ जो कैलकुलेशन बोले उतने दिखाने हैं। 5 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। प्रॉब्लम नंबर 5th। पेज नंबर 14।
calculation of gain or loss on the destroyed bus right hand side corner rupees. परचेस कब हुई थी बस? कॉस्ट ऑफ बस एज ऑन 1st Jan 2019. 1st Jan 2019. How much is it? 8 lakhs. बेटा एक बार ईयर एंडिंग डेट कंफर्म करो तो क्या है? हाँ करेक्ट, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। लास्ट के सेंटेंस में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम की, वहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड डेट 31st मार्च 2021, मतलब 31st मार्च ईयर एंडिंग डेट है, तो 31st मार्च को बुक्स क्लोज करने पड़ेंगे। अब ये बस परचेस कब की थी? मेथड कौन सा है? लेस डेप्रिसिएशन, रेट कितना है? 20% ऑन WDV टिल 31st मार्च 2019, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 20%। कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। Therefore WDV as on 1/4/19 7,60,000 less अगले साल भर का डिप्रिसिएशन। 152,000। Therefore WDV as on 1/4/2020 6,08,000। डैमेज कब हुआ है? 1 जुलाई को, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन at the rate of 20% on WDV till 1st July 2020, बोल तो 3 महीने का आएगा। ₹6,08,000 20%, 3 महीने के लिए 30 30,400।
and therefore WDV as on the date of destruction, बोलो बेटा, 577 600. इंश्योरेंस क्लेम, ये भी गलत है. ऐसी इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्यों नहीं मिलती? 6 लाख. क्या है रे? क्या है लेकिन? गेन ऑन द डिस्ट्रॉयड बस. बोलो. 22,000. 2.5 मार्क मिल गया. 2.5 मिलेगा ना. और एक क्वेश्चन है ना उसी में, और एक रिक्वायरमेंट है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बोला है. कैलकुलेशन ऑफ depreciation for the year ended 31 मार्च 2021 2021. राइट हैंड साइड कॉर्नर रुपीज. Depreciation on the bus damaged या destroyed हमने ऊपर कैलकुलेट किया है अभी. इस साल के लिए कितना है? 30,400. 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन चाहिए मुझे. तो पहले 3 महीने का डिप्रिसिएशन है ना बस डिस्ट्रॉयड पे. आया क्या? नहीं ध्यान में आ रहा है तो फिर से दिखाओ कैलकुलेशन. उसका WDV कितना था? 6,08,000. 20% फॉर 3 मंथ्स. अरे अभी तो किया 2 मिनट पहले ऊपर. फिर एक एडिशनल बस खरीदी है. कब खरीदी है वो? 1 जुलाई को. डेप्रिसिएशन ऑन बस परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2020 कितने में खरीदा है? 10 लाख पे 20% 9 महीने के लिए. 10 लाख पे 20% बोल तो 2 लाख रुपए. 9 महीने के लिए इट विल बी 1,50,000. Therefore, depreciation for the year ended 31st March 2021
180, 400। अब हो गए 5 मार्क पूरे। सबका आया? सबका आया? आई थिंक ऑल द प्रॉब्लम्स आर ओवर। सारे प्रॉब्लम्स हो गए। एंड एज आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे, the most important part of this topic, which normally which normally professors ignore at foundation level, which should not be ignored, that should be taught to the students at this level only. इंटरमीडिएट में आने के बाद मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि मुझे हर बार ये मेथड फिर से सिखानी पड़ी। हर बार, हर बैच में, अभी के भी बैच में मैंने फिर से सिखाया ये मेथड इंटर में आने के बाद, जबकि इंटर के सिलेबस में वो है नहीं। इंटर के सिलेबस में डिप्रिसिएशन का टॉपिक ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो टॉपिक्स है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या कहीं पे भी कोई भी टॉपिक में जहाँ फिक्स्ड एसेट्स है उसका डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग आया, वहाँ पे जो डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग है ये अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसी मेथड से होता है। तो अब वो ट्रीटमेंट जब मैं इंटरमीडिएट में डायरेक्ट कराने जाऊंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं सर, जबकि वो फाउंडेशन में हुआ हुआ रहता है। और ज़रूरी नहीं सबने पढ़ाया है। अब ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन मेरे से सीखा है, उनको मैंने पढ़ाया हुआ है, उनको भी ज़रूरत तो रहती है वापस रिवाइज कराने की, क्यों तो इतना सब याद भी नहीं रखते बच्चे। तो ये वापस पढ़ाते ही है इंटर में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईसीआई ने कभी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दे के फाउंडेशन लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या पता इस बार आ जाए, यू नेवर नो। लिखो हेडिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड। और अब जो मैं नोट लिखा के देने वाला हूँ, ये नोट प्रिजर्व करके रखना, ये तुमको आगे भी काम आएगा। सिर्फ फाउंडेशन की हद तक ही नहीं, आगे भी तुमको काम आएगा हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको एक एक चीज लिखा के देता हूँ, फिर समझाता भी हूँ। अच्छे से लिखो बेटा। आई स्टार्ट। लिखो, कन्वेंशनली कन्वेंशनली the amount of annual depreciation conventionally the amount of annual depreciation is credited to is credited to fixed asset account. Fixed asset account, full stop. As a result, as a result, the fixed asset account, the fixed asset account
is carried in the books is carried in the books at its WDV at its WDV। तुम एक बार लिख लो फिर समझाता हूं मैं क्या लिखा के दिया है। फुल स्टॉप। ऑन सेल ऑफ द एसेट on sale of the asset the WDV is compared with the WDV is compared with the sale proceeds is compared with the sale proceeds and the difference and the difference is and the difference is accounted as the difference is accounted as profit oblique loss on sale of the asset। Profit oblique loss on sale of the asset। क्या एग्जैक्टली लिखा ये हमने अभी अभी हमने एग्जैक्टली ये लिखा कि ट्रेडिशनली कन्वेंशनली जो मेथड मैंने सीखा 11 स्टैंडर्ड से अभी तक उस मेथड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन व्हाट डू वी डू इज वी क्रेडिट इट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कल मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्रीज लिखा के दिए। मैंने आज प्रॉब्लम सॉल्व कराया जिसमें मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया था मशीनरी अकाउंट मोटर ट्रक अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया ना डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया इसका मतलब ही यह है कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हमने कम कर दी। फिक्स्ड एसेट्स में कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट कर दिया बोल तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम कर दी। सो बेसिकली वी कैरी द फिक्स्ड एसेट्स इन द बुक्स एट इट्स WDV। हम WDV पे कैरी करते हैं फिक्स्ड एसेट को क्यों। तो डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट because depreciation is credited to fixed asset account automatically the fixed asset account will be carried in the books at its WDV। जब कभी एसेट बेचा जाता है तो वी credit the sale proceeds to fixed asset account and then those sale proceeds are compared with WDV and difference between WDV and sale proceeds is accounted as profit or loss on sale of fixed asset। तो 11 स्टैंडर्ड से लेके अभी तक जो डेप्रिसिएशन सीखा है ये यही सीखा हुआ है बस वही लिखा के दिया इस पैराग्राफ में मैंने। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लाइन। however however under under provision for depreciation oblique accumulated depreciation account method oblique accumulated depreciation account method the amount of annual depreciation is not credited to
fixed asset account comma, but it is credited to a separate account called provision for depreciation oblique accumulated depreciation account as a result, full stop देके लिखो, as a result the fixed asset account is carried in the books at its cost only and depreciation thereon gets accumulated in a separate account gets accumulated in above mentioned separate account अभी क्या लिखा वो समझो। जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं, जो मेथड हम अभी सीख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड, इस मेथड में क्या होता है बेटा कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन है ना, वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते ही नहीं है। इट इज नॉट क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट known as provision for depreciation और accumulated depreciation account. नॉमेनक्लेचर तुम कुछ भी यूज करो अकाउंट के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड अकाउंट बोलो या accumulated depreciation अकाउंट बोलो, एनी अकाउंट यू रेफर, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या होगा समझ के लो, और बहुत लॉजिकल मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट अगर फिक्स एसेट के अकाउंट को क्रेडिट होगी नहीं तो फिक्स एसेट का वैल्यू कम होगा क्या? तो फिक्स एसेट अकाउंट में तो जो कॉस्ट है उतना रहेगा ना, वो जितना पहले था उतना ही। ट्रेडिशनल मेथड में फिक्स्ड एसेट में डब्ल्यूडीवी क्यों आता है? डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं ना हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट को, बट अब इस मेथड में अगर मैं बोल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना ही नहीं है, इट इज टू बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट विच वी मेंशन्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट जो है वो तो कॉस्ट पे रहेगा ना। समझो फॉर एग्जांपल से मैंने कोई एसेट 5 लाख रुपए में खरीदा है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है मैं वो फिक्स एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हूं, तो फिक्स एसेट अकाउंट में हमेशा बैलेंस 5 लाख ही रहेगा ना। इट मींस द फिक्स एसेट अकाउंट विल बी कैरिड इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन thereon will get accumulated in the above mentioned separate account. काय बोलतोय कळतंय? समझ में आ रहा है सब लोग? जो मठ जैसे बैठे, हमें झोपू नको, उत्तर दे, फुल झोपेत आहे, कळालं का काय? उसके पास अभी कोई भी पीछे मुड़ के देखो, फुल नींद में हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या?
दवाई चालू है क्या? मेडिसिन चालू है? हाँ, उसका असर दिख रहा है चेहरे पे भी। नहीं, एक्चुअल में दवाइयों के बाद में जैसा वो होता है ना, मेरे को जब वो दांत के टाइम हो रहा था तो मेरे को रियलाइज हो गया। क्या हो गया? बुखार है, टेम्परेचर है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है दैट विल बी कैरिड इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट ओनली, एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन विल गेट एक्यूमुलेटेड इन सेपरेट अकाउंट। समझ? प्रॉब्लम कब आएगा? जब एसेट बेचा जाएगा। देयर विल बी इशू व्हेन द एसेट विल बी सोल्ड। जब एसेट बेचेंगे तब प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? मैं जब एसेट बेचता हूं तो मुझे एसेट के सेल प्रोसीड्स एंड डब्ल्यूडीवी कंपेयर करके दोनों में का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस लेना पड़ता है ना। अब मेरे पास किसी अकाउंट में डब्ल्यूडीवी है ही नहीं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है वो कॉस्ट पे कैरी हो रहा है। उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में है। तो डब्ल्यूडीवी कोई एक अकाउंट में है ही नहीं ना। तो मैं सेल प्रोसीड्स को किसके साथ कंपेयर करूं प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए? तो फिर क्या करना पड़ता है? तो एक अकाउंट बनाया जाता है उस टाइम पे, टेम्पररी अकाउंट कॉल्ड एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जिसमें एसेट जो बेचा है उसका कॉस्ट भी और उसके ऊपर का उस दिन तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर किया जाता है उस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। अब एसेट डिस्पोजल में कॉस्ट भी आएगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों में का डिफरेंस ही तो डब्ल्यूडीवी है ना। तो वो हम एक जगह ले आएंगे वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। उसी अकाउंट में, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सेल प्रोसीड्स भी रिकॉर्ड करेंगे, and then sale proceeds will be automatically get compared with WDV, and difference in that account will be profit or loss. तो यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट इट्स कॉस्ट, एंड depreciation thereon gets accumulated in प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब कभी एसेट बेचा जाएगा तो इन दोनों के भी बैलेंसेस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आएंगे। फिर एसेट डिस्पोजल में डब्ल्यूडीवी आ जाएगा। क्या? तो कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों में का डिफरेंस ही तो डब्ल्यूडीवी है। तो asset disposal account will have WDV, and sale proceeds will be created to that account only, asset disposal account, and then difference between that account, the balancing figure will be accounted as profit or loss. लिखो next line, next line. On sale of, on sale of the fixed asset, on sale of the fixed asset, comma, its cost, its cost, and accumulated depreciation thereon, and accumulated depreciation thereon will be transferred to, will be transferred to a temporary account, a temporary account called as, called as asset disposal account, asset disposal account, full stop. Sell proceeds of the asset, sell proceeds of the asset will also be, will also be credited to asset disposal account, full stop. Finally, finally, the balancing figure,
finally the balancing figure in asset disposal account will be accounted as profit oblique loss on sale of the asset. नेक्स्ट लाइन लिखो, अकाउंटिंग एंट्रीज। रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, याद आ रहा है ये सिखाया हुआ? कभी किसी जमाने में हम ये सीखे थे 550 साल पहले। 550 साल हो गए ना, ज्यादा हो गए। नंबर 1, फॉर annual depreciation on fixed asset, depreciation account debit to provision for depreciation account। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट हो ही नहीं रही है तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट तो फिर कॉस्ट पेज कैरी होगा ना। इट वोंट गेट रिड्यूस टू इट्स डब्ल्यूडीवी, इट विल बी कैरिड इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट ओनली। नंबर 2, for transfer of cost of asset sold, for transfer of cost of asset sold। मेरे को बताओ एसेट की कॉस्ट कौन से अकाउंट में? एसेट अकाउंट में। विच बैलेंस इट हैज? तब उसको क्रेडिट करेंगे ना, एसेट डिस्पोजल को डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या पास होगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नंबर 3, for transfer of accumulated depreciation on asset sold, for transfer of accumulated depreciation on asset sold। कौन से अकाउंट में accumulated depreciation? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो अब उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है तो उसको डेबिट करेंगे और एसेट डिस्पोजल को क्रेडिट करेंगे, तो क्या एंट्री पास होगी?
Provision for depreciation account debit. Two. अपने आप की अंडरस्टैंडिंग इतनी परफेक्ट कर लेनी चाहिए कि लिखते लिखते अपने को समझ में आना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं। तुम्हारे सामने जो सेकंड एंट्री थर्ड एंट्री है, इसका नेट इफेक्ट क्या है? WDV ऑफ द एसेट, जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। सेकेंड एंट्री में तुमने कॉस्ट डेबिट कर दी एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, एंड थर्ड एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। अब कॉस्ट डेबिट में, क्रेडिट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो इन दोनों में का डिफरेंस इज व्हाट? WDV। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में WDV आ गया। सीरियल नंबर 4, फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। For sale of fixed asset, what entry will you pass? Cash or bank account debit? Two. Correct. Asset disposal account. Two. Asset disposal account. आया? For profit on sale of fixed asset. बोलो। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल में क्रेडिट बैलेंस आएगा ना, अगर प्रॉफिट है तो सेल प्रोसीड ज्यादा रहेंगे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट एंट्री, for loss on sale of fixed asset. Profit and loss account debit टू। हो गया? हो गया? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, on 1st January 2021, a machine is purchased. A machine is purchased costing rupees 5 lakhs. Costing rupees 5 lakhs. It is depreciated. It is depreciated at the rate of 20% per annum
on WDV basis. 20% per annum on WDV basis. Full stop. The books of accounts are closed. The books of accounts are closed on the books of accounts are closed on 31st December every year. On 1st of Jan 2023, on 1st of Jan 2023, the machine is sold. The machine is sold for rupees 3 lakhs. Full stop. Prepare necessary ledger accounts. Prepare necessary ledger accounts if the annual depreciation if the annual depreciation is credited to A, next line A, machinery account, next line A, machinery account, B, provision for depreciation account, B, provision for depreciation account. लिखा? अब लिखो नेक्स्ट लाइन, आंसर लिखना है हमने को। ए हेडिंग लिखो, depreciation is credited to machine account. Depreciation is credited to machine account. Draw machinery account. Half page.
रेडी, करे स्टार्ट। 1st Jan 21 to bank account, machine is purchased for 5 lakhs, बरोबर। Year ending date will be 31st December 21 by depreciation 20% है ना, हाउ मच विल इट बी। काय को कैलसी चाहिए बेटा कार्तिक, 5 लाख पे 20% के लिए, व्हाई डू यू नीड कैलसी। कैलसी पे क्या कर रहा फिर, हाँ, कैलसी पे क्या निकल रहा आगे का। अभी तक तूने डिप्रिसिएशन ही नहीं लिखा और तो आगे का क्या निकल रहा। एटलीस्ट डोंट आर्ग्यू, ठीक है ना, सर ने पकड़ लिया अपने को तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। आगे का क्या कैलकुलेशन, पहले का ही लिखा नहीं। थोम्बिया, मामे, बहुत बदमाश हो गया मामा यार। मामी के प्यार में क्या क्या करेगा कुछ भरोसा नहीं। अगर बाई चांस मामी क्लास में है, तो ध्यान दे, 5 लाख पे 20% भी कैलकुलेट करने नहीं आ रहा, हिसाब किताब में प्रॉब्लम करेगा। कितना आया, 4 लाख। 1122, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4 lakhs। फिर ईयर एंडिंग डेट को 31st December 2022 बाय डेप्रिसिएशन। यस, आधे घंटे बाद बाय करेंगे ना अपन। कितना, 80,000। मामे, 80,000 आया क्या। मामा जवाब नहीं दे रहा। मामा गुस्सा हो गया, हुआ तो भी क्या। गुस्सा हुआ तो मामी के पास कंप्लेंट कर देंगे हम तेरी। कितना बेटा, 3 लाख, क्या बात है। 1123, चलो 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 लिखो। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,20,000। अब 1 जनवरी 2023 को बेच दिया ये एसेट, कितने में, डिप्रिसिएशन आएगा क्या। नहीं ना, पहले ही दिन बेचा है। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट सेल प्रोसीड्स, कितने, डब्ल्यूडीवी कितना था, 3,20,000 था और बेचा कितने में, मतलब 20,000 का लॉस है, क्लोज कर दो अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, 20,000 ब्रैकेट लॉस ऑन सेल, सबका आया। ऑल ऑफ यू गॉट इट।
फिर लिखो, ये अगर हो गया है तो फिर लिखो बी, बी annual depreciation, annual depreciation is credited to, is credited to provision for depreciation account, is credited to provision for depreciation account. चलो मशीन अकाउंट, 10 lines, machine account 10 lines, 'provision for depreciation account', provision for depreciation account ten lines, and guys machine disposal account, 6 lines, machine disposal account 6 lines, ready format? Yes, चलो ध्यान दो बेटा, all of you please pay attention. करें start. What is the entry for machine purchased? Machine purchased की entry, machine account debit to machine account debit side 1121
to bank account. How much? 5 lakhs. 5 lakhs. What is the entry for depreciation under this method at the end of the year? Depreciation account debit to provision for depreciation 31st December 21 by depreciation, provision for depreciation के credit में. What will be the amount of depreciation? 1 lakh. 1 lakh. और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं बेटा, तो ये दोनों अकाउंट क्लोज होंगे फर्स्ट ईयर के एंड में और इनका क्लोजिंग बैलेंस लिया जाएगा. मशीन अकाउंट 31st December 21 बाय बैलेंस carried down 5 lakhs. डेप्रिसिएशन जब क्रेडिट हो ही नहीं रहा इस अकाउंट में तो जाहिर सी बात है कि मशीन अकाउंट विल बी कैरिड इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट ओनली, कॉस्ट पे ही कैरी होगा वो. तो 5 लाख में खरीदा था, क्रेडिट में कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो 5 लाख का बैलेंस रहेगा उसमें, बरोबर. रीओपन इन नेक्स्ट ईयर 1122 टू बैलेंस brought down 5 lakhs. बरोबर. Then provision for depreciation 31st December 21 to balance carried down 1 लाख. बरोबर है. After the total next line 1122 buy balance brought down 1 lakh. अब सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन आएगा फिर से. व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? depreciation account debit to provision for depreciation 31st December 22 provision for depreciation account credit side by what is the amount of depreciation in the second year? 80,000. बरोबर. आया. फिर से दोनों अकाउंट क्लोज करके अगले साल रीओपन करने पड़ेंगे. मशीन अकाउंट 31st December 22 बाय बैलेंस carried down, it will be 5 lakhs only. To balance brought down 5 lakhs. Provision for depreciation account to balance carried down 1 lakh 80,000
1123 बाय बैलेंस brought down 180,000। सब लोग मेरे पास ध्यान दो। अभी 2 साल कंप्लीट हो गए। जो डेप्रिसिएशन था वो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया, तो इट गॉट एक्यूमुलेटेड इन दैट अकाउंट। आप देख सकते हो कि 2 साल का मिला के डेप्रिसिएशन 1,80,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेटेड है। एंड जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है मशीन अकाउंट, वो कॉस्ट पेज कैरी हो रहा है। अब 1 जनवरी 2023 को एसेट बेच दिया, जो मशीन था वो बेच दिया। जब मशीन बेचा जाता है, जब फिक्स एसेट बेचा जाता है, तो इस मेथड में उस एसेट का, जिस जिस एसेट को बेचा है उस एसेट का कॉस्ट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं। अभी ये जो मशीन बेचा है इसका कॉस्ट कौन से अकाउंट में? क्या सोच रहे, किसको मालूम? जो मशीन बेचा है उसका कॉस्ट कौन से अकाउंट में है? मशीन अकाउंट में। कौन सा बैलेंस है? तो अब ये मेरे को ट्रांसफर करना है मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। व्हाट विल बी द एंट्री? machine disposal account debit to machine account. So machine account credit side 1123 by machine disposal account bracket transfer of cost कितना है? ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट 5 लाख कॉस्ट है, तो इस अकाउंट में बैलेंस भी तो उतना ही है ना, तो 5 लाख रुपए का कॉस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे। गो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट साइड 1123 टू मशीन अकाउंट, 5 lakhs। करेक्ट? करेक्ट। वैसे ही जैसे हमने कॉस्ट ट्रांसफर किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो नाउ इट विल बी डेबिटेड एंड मशीन डिस्पोजल विल बी क्रेडिटेड। मेरे को एंट्री बताओ ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। Debit side 1123 to machine disposal account bracket transfer of accumulated depreciation how much? 1,80,000। Go to machine disposal account credit side 1123 by provision for depreciation account $1,80,000। बोल तो ऑटोमेटिकली WDV आ गया यहाँ पे। अब what entry do we pass under this method for sale of asset? Cash or bank account debit to machine disposal account, machine disposal credit side by bank account brackets sale proceeds। कितना अमाउंट है? अब मेरे को बताओ, कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इन दोनों में का डिफरेंस कितना था?
3,20,000 कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में का डिफरेंस बोल तो डब्ल्यूडीवी कितना था? 3,20,000 बेचा कितने में? 3 लाख, तो 20,000 का लॉस है। ये अकाउंट क्लोज करो, बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है कि लॉस है? क्रेडिट साइड 1/1/2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट लॉस ऑन सेल, हाउ मच? 20,000। आया क्या? आया बच्चों? तो मेरे को बताओ ओवरऑल इफेक्ट्स में कोई फर्क हुआ है क्या? ओवरऑल अकाउंटिंग वही हुई है, फर्क सिर्फ इतना है कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट हुआ। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स आर कैरिड इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट, तो अपने को कॉस्ट भी पता चलता है कितना है, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग अकाउंट में पता चल जाता है। दोनों में का डिफरेंस इज डब्ल्यूडीवी। एनी प्रॉब्लम? मैं जो बता रहा था आपको कल, आज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कंपनीज एक्ट में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टैट्यूटरी फॉर्मेट दिया हुआ है, शेड्यूल 3 बोल के, जो मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में बताया भी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बेटा वहां पे ना फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट अलग से दिखाना पड़ता है, उसके ऊपर का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अलग से दिखाना पड़ता है। इसका मतलब ही ये है कि ट्रेडिशनल मेथड जो है वो रियल लाइफ में फॉलो नहीं होती, एटलीस्ट कॉर्पोरेट्स में, एटलीस्ट कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में। तो वहां पे यही मेथड फॉलो होता है जो मैंने अभी सिखाया, और यही मेथड आगे भी आपको इंटरमीडिएट में भी काम आएगा जगह जगह पे। तो सब दिमाग में गया जो सिखाया वो? एंड बोलने के लिए नहीं, जोक्स अपार्ट, ये जो आज नोट लिखा के दिया है मैंने, ये प्रिजर्व करके रखो, ये तुमको बाद में भी काम आएगा। मैंने रेगुलर बैच में भी कराया था ये पूरा, और आज भी पूरा वापस से कराया है। जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच में, समझ में आ रहा है आपको ये सब जो किया वो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, यस गाइस, सो विद दिस वी फिनिश विथ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपना कंप्लीट हो गया। आई एम प्लानिंग टू टेक नाउ फाइनल अकाउंट्स ले लेते। पार्टनरशिप लेना है? नहीं, पार्टनरशिप में ब्रेक का को, दशहरे की छुट्टी आ रही है ना वापस ट्यूसडे की, तो ठीक है ना, वो लाइन से लेनी है। अगले हफ्ते में मेरा, मेरे को दशहरे की छुट्टी दिमाग में थी नहीं, तो अगले हफ्ते में 5 लेक्चर्स मिलते हैं ना, तो उसमें देखते हैं फाइनल अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तीनों होंगे क्या, मुझे डाउट है। इश्यू ऑफ शेयर्स थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है, 2 लेक्चर से ज़्यादा। तो लेट्स सी, फाइनल अकाउंट्स ले लेता हूँ मंडे को। तो मंडे को, मंडे वेडनेसडे में फाइनल अकाउंट्स हो जाना चाहिए 2 दिन में। बाकी फिर देखते आगे का प्लानिंग। चलो, सी यू ऑन मंडे गाइज, थैंक यू, बाय बाय।